Hello, good morning students. I hope you all are fine at your own place. Okay, today we are going to discuss about the term BD projectile. Today's our topic is projectile BD. So that term is very important BD as per board examination as well as competition point of view BD. To please try to understand properly BD. आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, आपको कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा बेटे. ठीक है. So okay. So see, what is the definition? What is projectile? When any body projected into space or air with some initial velocity. That is the point we take. When any body projected into space or air with some initial velocity and that moves under the effect of gravity alone. ठीक है? I hope आपको मेरी बात समझ आ रही है. When any body projected into space or air. अब मैंने इसको यहां से छोड़ दिया. ठीक है, ये मार्कर है मेरे पास, मैंने इसको यहां से ड्रॉप कर दिया, नीचे चला जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, बट दैट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल. अब मैं यही मार्कर जो है मैं इसको इस तरह से थ्रो कर रहा हूं बेटे. तो आई एम थ्रोइंग इन दैट वे. इट मींस विद सम इनिशियल वेलोसिटी. सो एंड दैट बॉडी मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन आफ्टर दिस. सो दैट इज कंसीडर्ड एज ए प्रोजेक्टाइल बेटे. ठीक है, अब हमारे पास प्लेयर है, प्लेयर जेवलिन थ्रो करता है, दैट इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल बेटे. ठीक है, कल को आप लोग पायलट बन जाते हैं. ठीक है, और अपने शहर के ऊपर से निकलते हैं और अपना अपना प्लेन आपने खड़ा कर दिया एंड यू ड्रॉपिंग समथिंग. ठीक है, सो मतलब दैट इज नॉट ए. तब जो आप लोग पैकेट ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं प्लेन को खड़ा करके एक जगह पे, दैट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल. बट अगर आप चलते प्लेन के बीच में से कुछ भी थ्रो करेंगे, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटे. ठीक है, आपने सिर्फ दो बातें यहां पे याद रखनी है. इन दो बातों के ऊपर ही पूरा आर्टिकल हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा बेटे. ठीक है, तो देखिए ये दो बातें बेटे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंने यहां पे मेंशन कर रहा हूं इन चीजों को. ठीक है, देखिए अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, along horizontal direction, move with uniform velocity, ठीक है. and along the vertical direction, move with uniform acceleration and that is the acceleration due to gravity. बस ये दो बातें बेटे. अगर ये दो बातें आपके माइंड में है, इट मींस यूजुअली यू आर एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम. ठीक है, along the horizontal direction move with uniform velocity and along the vertical direction move with uniform acceleration and that acceleration is equal to acceleration due to gravity बेटे. ठीक है, is it okay? So see again the projectile. What is projectile? Projectile क्या कहा हमने? When any body projected into space or air with some initial velocity, we are throwing in that way. ठीक है, so with some initial velocity that moves under the effect of gravity alone, so that is considered as a projectile. And projectile follow two independent motion बेटे. Along the horizontal direction move with uniform velocity and along the vertical direction move with uniform acceleration and that acceleration is equal to acceleration due to gravity. ठीक है, I hope आपको प्रोजेक्टाइल टर्म जो समझ आया होगा. फिर दो बातें याद करो मेरे साथ. ठीक है, along the horizontal direction it move with uniform velocity and along the vertical direction it move with uniform acceleration and that acceleration is equal to acceleration due to gravity. इसको हमने जी के साथ डिनोट कर दिया बेटे. ठीक है, along the horizontal direction it move with uniform velocity. ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी बेटे. ठीक है, सो हम स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल की. इन दो पॉइंट्स का यूज करना है. Along the horizontal direction it move with uniform velocity, along the vertical direction it move with uniform acceleration and that acceleration is equal to acceleration due to gravity. Okay, so our first article is here, projectile fired horizontally. ठीक है, तो सी बेटे आपके पास यहां पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बेटे फायर्ड हॉरिजॉन्टली. ठीक है, अब आप लोगों ने इस तरह से फायर कर दिया यहाँ पे विद सम इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ये ओरिजिन बेटे ग्राउंड,
ग्राउंड से सपोज आपने हाइट ले लिया कि हाइट कितना आपके पास h, जहां से आप लोग फायर कर रहे हैं बेटे, ठीक है। अब इसका पाथ कैसा होगा बेटे, ठीक है। देखो यहाँ पाथ आपके पास कैसा होगा, दिस वन। अब देखो सपोज आप इस चीज को फेंक रहे हैं, मार्कर को फेंक रहे हैं इस तरह से, ये ऐसा थोड़ी कि सीधा चलता रहेगा बेटे, ठीक है। फॉलो सच टाइप ऑफ पाथ, ठीक है, ओके। अब आपके यहां पे जाके ये ड्रॉप हो गया बेटे। अब हमने इस प्रॉब्लम को समझना, देखिए प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन कंप्लीट हो रहा है। व्हेन एनी बॉडी प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोंग, दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। अब मैंने कहा दो इंडिपेंडेंट मोशन फॉलो करता है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटे। नाउ सी वन बाय वन। अब आप लोगों ने यहां पे एक चीज बेटे मैं थोड़ा सा यहां मेंशन कर दूं, सपोज आपके पास ये प्लेन, अगर हमारे पास ये प्लेन, सपोज मैंने यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, अगर मैं प्लेन के बीच में कोई पॉइंट ले रहा हूं बेटे, इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मेरे पास यहां पे कोई इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई, ठीक है। सपोज इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी है, ये मूव भी कर रहा है, तो मैंने यहां पे इसको स्टडी किया, तो हम लोग, आपने ये इक्वेशन पढ़ रखा है, आपने ये इक्वेशन पढ़ा x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसके बेस के ऊपर मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ux एंड ax, दैट इज x जो है यहां पे, दैट इज ओनली सब्सक्रिप्ट बेटे, कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस बेटे। सेकंड टाइम मैं y बोल सकता हूं यहां से, बट इज y, दैट इज u बाई t प्लस हाफ ऑफ a बाई टी स्क्वायर। क्लियर बेटे, इससे ये तो आगे मेरे पास डिस्टेंस की इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बट इज vx मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे, दैट इज ux प्लस axt, दैट इज फॉर वेलोसिटी। यहां पे आपके पास दैट इज by हमारे पास क्या बन जाएगा, uy प्लस a बाई t। इस तरह से हम लोग इन टर्म्स को लिख सकते हैं बेटे, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, bx by, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपके पास प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली। अब हमने यहाँ पे 5 स्टेप्स स्टडी करने हैं बेटे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट स्टेप है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सी आप कैसे इस चीज को स्टडी करेंगे बेटे, अब मैंने यहां पे लिख दिया x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गया अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने हॉरिजॉन्टल में क्या अज्यूम किया था, आपने कहा था अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही कहा था आपने। तो सी आपके पास बट इज ux कितना आ गया बेटे u। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। सभी को हमें पता है बेटे, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, सो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 0। तो आपके यहां से क्या बन जाएगा बेटे, देखिए ut प्लस 0, इट मींस दैट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपने इस चीज को स्टडी कर लिया, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हमारे पास ये जनरल इक्वेशन था, ठीक है। आपने यहां पे कहा कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कंप्लीट इनिशियल वेलोसिटी लाई अलोंग x एक्सिस बेटे, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो ux इज इक्वल टू u, बट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू ut। सेकंड वन, मोशन अलोंग vertical direction, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन बेटे, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ ऑफ a बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास सी बट ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस, देखो बेटे जितनी भी थी सारी की सारी किस तरफ है, अलोंग x एक्सिस है, बाई की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है। इट मींस आपके पास बट इज द वैल्यू ऑफ uy इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो गया आपके पास, दैट इज g। तो आपके पास यही इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया बेटे, क्लियर। आपके पास मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमने इसी इक्वेशन को ले लिया। क्यों, आपके पास वी हैव फायर्ड इन ए प्लेन, अब प्लेन के बीच में फायर कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, तो इट मींस आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओनली x एंड y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर बेटे। थर्ड पॉइंट आपके पास दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब मैंने यहां पे वर्ड यूज किया ट्रेजेक्टरी, बट इस ट्रेजेक्टरी बेटे
सिंपल, इट इज अ path traced by the projectile. It is a path traced by the projectile that is called as trajectory. Path traced by the projectile that is called as its trajectory. जो भी प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है, जिस भी रास्ते से वो जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल बेटे। तो हमने अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पे फाइंड आउट करना है बेटे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास बट इज टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, ठीक है। अब आप लोग इसी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। आपने कहां रख देना इसको, सेकंड इक्वेशन में रख देना बेटे। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू बट इज u y तो 0 था, हमारे पास क्या था 1/2 दैट इज g, और t की जगह क्या आ गया बेटे, दैट इज x अपॉन u का होल स्क्वायर। यही बना बेटे, ठीक है। यहां से देखिए आप लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, आप यहां से लिख सकते हैं g अपॉन 2u स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी जो आपने एक बार प्रोजेक्ट कर दी दैट इज आल्सो कांस्टेंट, बट द वैल्यू ऑफ x इज वेरिएबल बेटे। अगर आप यहां स्टडी कर रहे हैं तो x ये है, आप यहां स्टडी कर रहे हैं तो x ये है, आप यहां स्टडी कर रहे हैं तो x ये है, ठीक है। इट मींस मेरे पास क्या बन गया, दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड हाइपरबोला, ठीक है। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बेटे, आपने वहां पे पढ़ा था y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, इट मींस दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, 4a कांस्टेंट था, यहाँ पे मेरे पास ये टर्म कांस्टेंट है बेटे, ठीक है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इट मींस दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बेटे, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ आई बेटे, ठीक है। बट तो मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उसके पाथ की नेचर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह का रास्ता वो फॉलो कर रहा है, तो वो किस तरह का फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ बेटे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल फॉलो पैराबोलिक पाथ बेटे। देखो ये जनरल इक्वेशन आपने अप्लाई किया, शायद आपको ये समझ आया होगा बेटे, ठीक है। ये इक्वेशन आपने यहाँ पे कहा एक्सीलरेशन 0 है, क्यों 0 है, बिकॉज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने अज्यूम किया है कि दैट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। मैं आपको यहां से वेरीफाई करूंगा कि बाकी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये आ गया ut। सेकंड आपने कहा बाई दिस वन, तो आपके पास क्या बन गया, अब ये टर्म आपके पास 0 हो गया, क्यों 0 हो गया, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी लाई अलोंग ओनली एंड ओनली अलोंग एक्स एक्सिस बेटे। तो हाफ ay और ay की जगह क्या आ गया g। फिर आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट किया। ट्रेजेक्ट्री मैंने आपको कहा इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल दैट इज कॉल्ड एज इट्स ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन से लिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या बन गया, हाफ g x अपॉन u का होल स्क्वायर, ठीक है। तो g अपॉन u स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इट मींस दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इट फॉलो द पैराबोलिक पाथ बेटे, ठीक है। ओके, फोर्थ स्टेप बेटे, हम लोग यहाँ पे इसके 5 पैरामीटर्स हैं बेटे, ठीक है, जिनको आपने स्टडी करना है। अब 3 पैरामीटर आपके क्लियर हो गए, फोर्थ की बात करते हैं। तो बेटे फोर्थ पैरामीटर इज हियर, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हेन यू प्रिपेयर द नोट्स, जो मैं यहां पे बोल रहा हूं आपने उस चीज को कॉपी पे जरूर नोट करना है। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन स्टे इन एयर। मतलब जब तक ये प्रोजेक्टाइल हवा के बीच में रह रहा है बेटे, स्ट्राइकिंग पॉइंट से लेके प्रोजेक्टिंग पॉइंट से लेके स्ट्राइकिंग पॉइंट तक ये हवा में ही है बेटे, ठीक है। जो भी टाइम है, इस पूरे के पूरे टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज रीड एज ए टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आपने ये नहीं कर लेना कि अब लंदन की फ्लाइट है उसका ये है, अब कनाडा की फ्लाइट है, दिल्ली की फ्लाइट है, नो। आप यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन स्टे इन एयर, ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट बेटे, ठीक है। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, इट मीन इस प्रोजेक्टाइल को जब हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, जितना टाइम इसको ग्राउंड के साथ टच होने के लिए लगा, उतना ही टाइम अलोंग एक्स एक्सिस ने ये डिस्टेंस कवर कर लिया और अलोंग वाई एक्सिस ने ये डिस्टेंस कवर किया। वो हमें क्लियर नजर आ रहा है, जहां से हमने फायर किया था ग्राउंड वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर हमें पता है कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, दैट इज h, ठीक है। तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस पता है, तो हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको आपने डिनोट कर दिया, दैट इज t। तो आपके पास क्या बन गया बेटे, यहां से देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट y इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। तो आपके पास y किसके बराबर आ गया, दैट इज h इज इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर। तो हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर,
t square is equal to 2h upon g. Now what is t? T is equal to under root 2h upon g. That is our result. ये हमारे पास क्या आ गया बेटे? That is टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन स्टे इन एयर. कहां से कहां तक? प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके स्ट्राइकिंग पॉइंट तक जो भी टाइम लगेगा दैट इज कंसीडर्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो t स्क्वायर 2h अपॉन g, बट इज t अंडर रूट 2h अपॉन g बेटे. तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज क्लियर. अब नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है यहाँ पे? दिस वन. ये हमने कैलकुलेट नहीं किया कि कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. ठीक है, तो इसको डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज कंसीडर्ड एज या कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. फिफ्थ पॉइंट बेटे दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे बेटे? कैपिटल आर से. ठीक है, तो हमारे पास टी आपके पास क्लियर है. यहाँ पे टी मैं यहां लिख देता हूं. टी इज इक्वल टू दैट इज अंडर रूट 2h अपॉन जी. ये हमारा फॉर्मूला था बेटे. हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, इसको आर से डिनोट कर दिया आपने. अब देखिए यहां से आप कैसे हैंडल कर सकते हैं इसको बेटे. डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? वेलोसिटी इनटू टाइम. सो व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? ux. एंड टाइम कितना लग रहा है इसको? जितना टाइम इसको यहां से यहां आने के लिए लग रहा है बेटे, उतना ही टाइम इसको यहां से यहां जाने के लिए लग रहा है. तो आपके पास व्हाट इज r इज इक्वल टू ux इंटू टी. तो ux कितना था हमारे पास? होल द इनिशियल वेलोसिटी लाई अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज u, एंड हियर इज t हमारे पास कितना है बेटे? दैट इज अंडर रूट 2h अपॉन जी. ठीक है, ये यहां ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया बेटे. ठीक है, देखो बेटे, अगर आप किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आर्टिकल यहां खत्म हो गया. अगर प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड ड्राइव द डिफरेंट पैरामीटर्स, तो हम यहां तक बेटे. बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपने क्या करना है? इसकी एप्लीकेशन को आपने यूज करना है. ठीक है, तो आप इसकी एप्लीकेशन को कैसे यूज करें, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे. ठीक है, पहले आप 6 पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं. जैसे सपोज अब मैं आपको बोल रहा था along the horizontal direction it move with uniform velocity, तो हम देखते हैं कि वाकई ऐसा है कि जो इसकी वेलोसिटी यहां पे है वही इसकी वेलोसिटी यहां पे होनी चाहिए. अब देखो सर्कुलर पाथ, तो हमने क्या कर दिया? इस पॉइंट पे निकालना है, तो हमने यहाँ पे क्या सर्कुलर पाथ था, तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बेटे. ठीक है, अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं अटेंड की है, मैं धीरे धीरे बेटे सभी के सभी लेक्चर जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर लोड कर दूंगा. आप लोग जब चाहें आप लोग वहां से देख सकते हैं बेटे. ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लासेस, बस आपने जो चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है. सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि जो भी मैं वीडियो लोड करूंगा वो आपके पास पहुंच जाएगी बेटे. मुझे लिंक भेजने की जरूरत नहीं है. आई हैव नो आइडिया कि किसने पिछली क्लास को अटेंड किया है, किसने नहीं किया है. ठीक है, तो आपने जो भी बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं अटेंड किया है वो अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, और उससे आपके पास क्या होगा? नोटिफिकेशन आपको चली जाएगी. जैसे मैं वीडियो लोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएगी वीडियो. ठीक है, ये बेटे ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, यहां पे मैंने वेलोसिटी ली है. ठीक है, ये देखो इट रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स दैट इज bx वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड दैट इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस. अब हमने bx और by को फाइंड आउट करना है बेटे. तो यहां से देखो bx और by की मैंने इक्वेशन लिखी थी. अब यहां पे देखो व्हाट इज bx एज पर दिस पिक्चर. bx क्या बन जाएगा? ux कितना है? u. एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे? 0, तो ये आ गया. व्हाट इज by ये आपका 0, और ये क्या बन गया? दैट इज gt. ठीक है बेटे, वेलोसिटी ऑफ अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन कंटिन्यूअसली गोइंग टू चेंज बिकॉज टाइम चेंज हो रहा है. दैट इज t फॉर वेरिएबल टाइम. जब तक यहाँ पे स्ट्राइक नहीं किया, मान ली यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 सेकंड के बाद वो स्ट्राइक कर रहा है. तो वर्टिकल डायरेक्शन में हर टाइम जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती चली जाएगी बिकॉज टाइम इज गोइंग टू चेंज. बट यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ठीक है, सो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी विल रिमेन सेम. ठीक है, ओके. अब यही पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम. तो देखिए velocity of the projectile at any time at
एनी टाइम, ठीक है। अब हमें इसको निकालना है बेटे, देखो अलोंग द एक्स एक्सिस आपके पास बेटे वैल्यू ऑफ bx कितना आ गया हमारे पास बेटे, bx इज इक्वल टू यू बट इज by दैट इज इक्वल टू gt। तो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बन जाएगा बेटे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, bx स्क्वायर by स्क्वायर, तो यहां से आपके पास क्या बन गया बेटे, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर बेटे, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बेटे, क्या क्वेश्चन पूछता है वो, देखो यहां पे जैसे को स्ट्राइक किया तो मतलब हिट द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ उसने ग्राउंड को हिट किया, ठीक है। जब वो यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो आपके पास क्या था, ये कंपोनेंट था bx और ये कंपोनेंट आपके पास क्या बन गया by, ठीक है बेटे। अब यहां पे देखिए आप लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी था bx आपके पास कितना रहेगा, bx आपके पास वही बनेगा u, by आपका कितना बन जाएगा, नो चेंज इज देयर दैट इज gt, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बन जाएगा बेटे, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर बेटे। अब अगला क्वेश्चन है कि किस bx u आ गया, by कितना आ गया gt, तो आपके पास क्या बन गया u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, जब वो हिट कर रहा है, हिटिंग वेलोसिटी, ठीक है, यहां पे नहीं, यहां पे टाइम t था, ये मींस दैट t फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वो किस एंगल के साथ उसने आके ग्राउंड को हिट किया, किस एंगल के साथ, एट विथ व्हाट डायरेक्शन दैट बॉडी या दैट प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, तो आपने वो डायरेक्शन यहां से निकाल लेना है, दैट इज द एंगल बीटा, ठीक है। जब आप इस बीटा की बात करेंगे तो ये एंगल बीटा कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से किस डायरेक्शन के साथ ये हिट किया, दैट इज tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू by अपॉन bx, तो by कितना बेटे, दैट इज gt, और ये हमारे पास कितना आ गया u। नाउ व्हाट इज बीटा, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt अपॉन u। इस तरह से हम लोग उसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं बेटे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी बेटे। प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली, प्रोजेक्टाइल में सिर्फ दो बातें, फिर इसकी भी एक बार डेफिनेशन में आपको रिवाइज करा रहा हूं, व्हेन एनी बॉडी प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ये मार्कर है, मैंने इसको यहां पे ऐसे थ्रो किया, ऐसे थ्रो कर रहा हूं, मतलब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, देन इट इज प्रोजेक्टाइल। अगर मैं सिंपल ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं, दैट इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल। और दो बातें मैंने आपको कौन सी बताई, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन मूव विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड दैट एक्सीलरेशन इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने कहा इसके आपने 5 पैरामीटर्स को स्टडी करना बेटे, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, देन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी क्या बताया मैंने आपको, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसको हम बोल देते हैं ट्रैजेक्टरी बेटे। तो ट्रैजेक्टरी में हमने देखा कि इसने किस इक्वेशन को फॉलो किया, इसने इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फॉलो किया बेटे। तो हमने बोल दिया कि इसका नेचर कैसा हो गया, इसका पाथ का नेचर कैसा हो गया, दैट फॉलो द पैराबोलिक पाथ, ठीक है। फिर हम लोग चले गए टाइम ऑफ फ्लाइट पे, बट इस टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन स्टे इन एयर, ठीक है, प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके स्ट्राइकिंग पॉइंट तक बेटे, ठीक है। तो वो आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट बेटे। फिर हम लोगों ने यहां से निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज का नाम दे दिया बेटे। क्लियर होगी बात ये, ठीक है, ओके। फिर हमने यहाँ पे डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन के साथ आके यहाँ पे हिट करेगा ग्राउंड को बेटे, ठीक है। तो आपने देखा जैसे हिट किया, ये बेस के साथ ये एंगल बना अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो bx कितना हो गया u, अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया gt, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ये बन गया, बट एंगल के लिए by अपॉन bx, तो gt अपॉन u, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt अपॉन u। तो आई होप आपको प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली समझ आया होगा, ठीक है। और बेटे अगर आपको समझ आ गया तो आपने क्या करना है, पिछली वीडियो में सभी 1 बाय 1 करके, डेली टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं लोड कर दूंगा सारी, तो आप लोगों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल की सब्सक्रिप्शन से ये होगा बेटे कि आप लोग जो भी मैं वीडियो लोड करूंगा आप तक वो पहुंच जाया करेगी बेटे। तो थैंक यू वेरी मच बेटे।